हाँ जी दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ 80 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੀ-ਟੈਟ, ਸੀ-ਟੈਟ ਅਤੇ ਐਚ-ਟੈਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, देखो हरेक राइटर ने ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 2800 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 2000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 1800 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ 2500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 1750 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ 2500 ਤੋਂ 2600 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2400 ਆਊਗਾ, 2400 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2300, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਈਸਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲਾ, ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, अगला क्वेश्चन हैगा सिद्धू घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन है। देखो ये आप सभ्यता आप करांगे, मिस्र की सभ्यता होगी, जिवें मैसोपोटामिया सभ्यता होगी, चीन की सभ्यता होगी। जी असल जी सिद्धू घाटी सभ्यता ये मिस्र की सभ्यता की समकालीन आ, तो मैसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन, तो चीन की आ, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। ठीक है, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਥੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾਂ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ, सिद्ध ਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ। ठीक है, याद कर लो। इसके बाद सिद्धू घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। ठीक है, देखो सिद्धू घाटी सभ्यता की अलग अलग जगह तो अलग अलग चीज़ां प्राप्त हुई, जिथे सुरकोट का जगह के उत्तों घोड़े के अवशेष मिले। क्वेश्चन पक्का आ सकता सी-टैट के विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं सिद्धू घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। ये हुण आया सीगा मास्टर कैडर SST के 100% आया सी राजस्थान के विच। ठीक है, ये कित्थे हैगा राजस्थान के विच आ, यानी कि पंजाब के SST के मास्टर कैडर के क्वेश्चन पक्का है जी 100%। तो हुण आपां गल करते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था। मतलब देखो हमेशा ਜਿਹੜਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ATM ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਲ ਖੜੀ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲ ਖੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਕੀ ਥੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਾਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ, ਲੋਹ ਯੁੱਗ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ, ਮੱਧੇ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ठीक है, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਾਲ, ਰੀਤੀ ਕਾਲ ਆਦਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਸੇ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਾय। ਵਿਵਸਾय ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਾय ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, सिद्धू घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते से, ईंटों से। ठीक है, सिद्धू घाटी सभ्यता के घर ईंटां दे बनाए जाते सी। वो ईंटां दा आकार की सीगा, वो तुहानूं अगली वीडियो दे विच आपां इहनूं एक्सप्लेन करांगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने, आपां इहनूं चंगी तरह पढ़ांगे। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसती, कपास। कपास मतलब कहते हैं घाह, और जो मतलब कपाह। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन सी, दयाराम साहनी। ये पक्का 100% आउंदा हुंदा, क्वेश्चन पक्का होगा, ये क्वेश्चन नूं याद कर लो चंगी तरह। ठीक है, सिद्धू घाटी सभ्यता का पतन नगर।
पतन नगर का मतलब बंदरगाह कौन सा था, किहड़ी बंदरगाह सी, लोथल ते रोपड़। ठीक है, लोथल ते रोपड़। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिद्धू घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी, कितने हुई थी, लोथल। याद करें तो मैं दस्या सी कहते ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਲੋਥਲ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਪ ਤੇ ਤੌਲ ਸੇ परिचित ਸੇ। ਅੱਗੇ हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जिमें देखो अपना समाज हैगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता गुरु नानक देव जी तो पहला ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ, ਛਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮ ਉਲਮਾ ਸ਼ੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹ ਸੀਗੇ ਵਰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। सिद्धू सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। सिद्धू सभ्यता की है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिद्धू सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। किसे सही चित्रण करता है, जी सब तो हैगी वो देवी देवतियों की जी पूजा करते थे, यही सिर्फ मेन यही है। अगला आप क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई सी, 1921। 100% याद कर लो, 1921 दयाराम साहनी ने करी सी, है ना। अगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, सब तो उक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। जोड़ा पशुपति जोड़े पशु रखते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, वे उचित सामतावादी थे, ये याद रखो हिंदी के विच, ठीक। उचित समय सिद्ध का नखली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में को कहा गया है, किसने कहा गया, मोहनजोदड़ो ने। ठीक है। अगे हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार। 100% आता सी टेट के पिछली बार भी आए थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो इन्होंने मिलान चिन्ह करना गा, इहदा मिलान चिन्ह है कि हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी ते आ, मोहनजोदड़ो सिद्धू नदी ते आ, लोथल हैगी भोगवा नदी ते कालीबंगा है घग्गर नदी ते। क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, घग्गर नदी के उत्ते हड़प्पा सभ्यता का किहड़ा स्थान आ कालीबंगा, तो भोगवा नदी के उत्ते किहड़ा गा लोथल, सिद्धू नदी ते है मोहनजोदड़ो, तो रावी नदी ते किहड़ा हड़प्पा। ये पक्का होगा क्वेश्चन, याद रख लो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा कितने हैगी, किहड़ी नदी है तुहानूं, घग्गर नदी। ठीक है। आगे देखो सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिलता है, कितने मिलता है, कालीबंगा च। ये RRB मुंबई के विच आए थे 2005 के विच। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिद्ध दे। ठीक है। सिद्ध सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाया जाता है, मोहनजोदड़ो विच बहुत बड़ा स्नानघर पाया जाता, वो तुसीं देखिया हो, तुसीं मैं कहना पंजाब के लोगों ने तो जरूर देखा होगा। सिद्धू सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, किधे मिलता, आदि शिव। ठीक है। कई बार पूछा कि किसकी पूजा होगी, शिव की भी पूजा हो सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, कितने था, लोथल में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मुर्दों का टीला। ठीक है, याद रखो मुर्दों का टीला 100% आता क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम थी मुर्दों का, मृत्युं का टीला या मुर्दों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिद्धू घाटी की सभ्यता, याद रखो सिद्धू घाटी की सभ्यता भी कहते हैं प्रचलित नाम। आगे का सेव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक उदरण किया है, बैल। ठीक है, याद रखो ये मुद्रा मोहरों के उत्ते किहदा चित्रण हुंदा मिलता, बैल का। सिद्धू घाटी सभ्यता जानी जाती किसके लिए, अपने नागर नियोजन के, मतलब इस आर्कीटैक्चर बहुत वधिया सी, हरेक चीज़ नूं जिहड़ियां सड़कां दियां मोड़ घोड़ ते गोल बनाए गए सी, यानी कि बहुत वधिया आर्कीटैक्चर सी जिन्होंने ये सिद्धू घाटी सभ्यता बनाई सी। सिद्धू सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कित्थे आ, लोथल च। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, हड़प्पा। ये याद रखियो। ठीक है, पहले शहर तो नाम तो ही प्रचलित होया हड़प्पा सभ्यता। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मतलब कहता साक्षी शब्द तो बने गए, साक्ष्य मिलते हैं कितने मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृत में। ठीक है। सिद्धू सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो एक गल होर कई बार क्वेश्चन आता भी सिद्धू घाटी सभ्यता लोग किस धात तो प्रचलित मतलब जाणू नहीं सी, ये आउंदा हुंदा लोहे तो जाणू नहीं सी। इत्थे लोहे का प्रयोग नहीं होया सीगा सिद्धू घाटी सभ्यता, इन्होंने पता नहीं सी लोहे का प्रयोग करना भी, लोहे इहदी मतलब लोहा बनया ही नहीं सी इन्हां दे समय दे विच, बाकी सारे इत्थे आउंदा।
आगे का मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी का, चेनाब नदी, चेनाब लिखा है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? किसी नदी है? सतलुज नदी। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कितों? धोलावीरा में, ठीक है, धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग है? किहड़े रंग का प्रयोग है? लाल रंग का, जिमें अपने घड़े ने, ठीक है। सिद्धू सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पढ़ा है? जानी कि किहड़े युग च पढ़ा है? तुहानूं मैं पता सीगा आदि इतिहास का प्रो हिस्टोरिकल पीरियड के विच, है ना, ठीक है, ये याद रखियो। सिद्धू घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिलते? किहड़े ते? मोहनजोदड़ो में, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो स्नान करती उत्थे मोहनजोदड़ो दे विच। सिद्धू घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो है दयाराम सैनी ते राखालदास बनर्जी, ठीक है, याद रखियो नाम। रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी वो कित्थे हैगी? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है, ਜਿਹੜੇ सब तो पुरातत्व विभाग के ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ मतलब पुरानी चीज़ों की खोज करता ने, सर जॉर्ज मार्शल। निम्नलिखित किस पशु की करती जो मोहरों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिद्धू घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में मध्य व्यापार संबंध की तो मिलते हैं? बैल तो। जेकर इन्हीं मुद्रा के उत्ते बैल की जी फोटो हैगी वो ये सिद्ध करती है कि सिद्धू घाटी सभ्यता तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक दूजे के समकालीन ने तो दोनों विचकार की व्यापारिक संबंध सीगे। सिद्धू घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? किहदे ते विश्वास करते? सब तो पहला मातृशक्ति में, ठीक है, अपनी मातृभूमि में प्यार करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धू स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजी। कोट दीजी कितने नहीं है? समुद्री स्थल से नहीं, लोथल भी है, बालकोट भी है, सुरकोट का भी है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? कहड़ा विशाल स्नान घर कित्थे हैगा? मोहनजोदड़ो दे विच, जिन्हों कहने मुर्दों का टीला। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति में, ठीक है। अगले का निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के रूप में अंकन नहीं हुआ? किसी ने नहीं हुआ थी? शेर का नहीं है, बाकी सारी का है, हाथी भी है, गैंडा भी है, तो बाघ का भी प्रयोग हुआ इस, ठीक है। आगे हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बार बार मैं पहले भी क्वेश्चन इसका आंसर दस चुका। लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल शवाधान का साक्ष्य मिलता है? किस मिलता? लोथल दे विच। कपास का मतलब कपाह का उत्पादन सर्वप्रथम सिद्ध क्षेत्र में हुआ जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिडन। ये याद रखियो, ये 100% आऊगा क्वेश्चन 55वां। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? देमाबाद, ठीक है, देमाबाद में प्राप्त हुआ। अगला है हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते? एक आयात होंगे, एक निर्यात, मतलब छड्डने तो एक प्राप्त करने। किहदा आयात करते थे? चांदी, टीन ते सोना, तिन्नां दा। हड़प्पा देख लोहा तो ये है ही नहीं सीगा, चांदी, टीन ते सोना। हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? मतलब कितों मंगवाते? हिंदूकुश क्षेत्र के बंदर शख्सों में से, ठीक है। अफगानिस्तान स्थित सिद्धू सभ्यता से संबंधित स्थल केड़े ने? एक मुंडीगाक, सुते सुत्रगोई, ठीक है, ये याद रख लियो, नाम दो याद रख लो, औखे ने, मुंडीगाक से सुत्रगोई, ये दोनों। कौन कौन से नगर सिद्धू सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? मैं बार मैं पहले भी कह सीगा, मैं देखो तो लोथल तो रोपड़ था पक्का, लोथल एक सुत्रगोंडा तो अल्लाहीदीनो एवं बालकोट, ये दिखा भी है, कुंतासी भी, ये सारे सभी ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? किहड़े किहड़े जानवर से ये विच? अगे बग्याग सी, हाथी सी, गैंडा सी, भैंसा सी, हिरन सी, ये याद रखियो। बघियाड़ मतलब जिन्होंने आप बघियाड़ कहने, बघियाड़ ने देखो, बघियाड़ है हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। अगर किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियाँ? नृत्य का मतलब है नचदी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, कांस्य की मूर्ति मिल जाएगी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति मिलती है? कि हड़प्पा के प्रस्तर। किस सिद्धू कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं? किधे मिलते हैं? या पता है चन्हुंद्रो से।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंचों से मछली दबाए चिड़िया, देखिए ये 100% आऊगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त, किहड़ी जगह तो प्राप्त सीगा, जार पर, एक जार मतलब जिहदे तो एक अपना जार दा तुहानूं मैं दसदा, एक लंबा जिहा हुंदा गा, उहदे विच जिवें साडे पुराने हुंदे ते उह 'च चार पाउंदे हुंदे ते, एक जार ते चोच में मछली दबाई चिड़िया, ठीक है, जिहदी चिड़िया जिहदे चोच मच्छिया, एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है कि जिहड़ी पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है। सादृश्य मतलब नहीं, ये 100% आ सकदा क्वेश्चन, कित्थों आ, लोथल तो, ठीक है, लोथल वाली जगह तो एक जार मिला जिदों ते फोटो छपियां हुई थी। अगेगा स्वतंत्रता उत्तर, स्वतंत्रता उत्तर का मतलब स्वतंत्रता तो बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, गुजरात। ये याद रखियो, स्वतंत्रता बाद सब तो बाद गुजरात हुई। निम्नलिखित से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जी किहड़ी चीज़ नहीं खाते थे, चौल नहीं खाते थे लोग, जौ खाते थे, दालें खाते थे, गेहूँ खाते थे। गेहूँ की होंदी है कणक। देखो एक गल होर, ये कथन ने जिवें हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों स्पष्ट ने, ठीक है आंसर। आगे का देखो, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, लोहा दी, लोहा नहीं होंदा प्राप्त हुआ था। किस पशु के अवशेष है सिद्धू घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, किहदे नहीं हुए थे, शेर, मतलब शेर है नहीं से समय के विच। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, शैलावीरा में, पहले आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, ये दूरी गल आ गया दूसरी बार। आगे सिद्धू घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित से किस मूर्ति है, नृत्य करती बालिका, ठीक है, अपने पहला पढ़े गए क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कित्थे है, गुजरात दे विच, लोथल कित्थे है, गुजरात दे विच, रोपड़ कित्थे है, पंजाब दे विच। स्थापित अगेगा स्थापित सिद्धू घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थी, तेन मैं पहले भी दस सकें सुनो है ना, ये पहलियाँ देनी कि सिद्धू भी थी, झेलम दी थी, जनाब भी सी, गंगा नदी नहीं हैगी सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धू घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, पार्टी पुत्र नहीं संबंधित हैगा, नहीं हैगा, बाकी हैगा कालीमंगन, रोपड़ भी आ, लोथल भी है, तुहानूं नाम सुने होने पहला, तुसीं आपदे आप उत्तर लभ लिया होगा ये पहली मेरे तो। सिद्धू सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, किहड़ा, मोहनजोदड़ो, मैं बार बार कहा सीगा इत्थे स्नान घर सीगा, कुओं में अवशेष मिलने चाहिए थे। सर्वप्रथम मानव के निम्न धातु का प्रयोग हुआ किहड़ी जगह के, सब तो यानी कि सब तो छोटी धातु किहड़ी सी, तांबा, जी मतलब घट निम्न धातु थी। यह निम्नलिखित से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों नहीं मिलता, देखो किहड़ी नहीं मिलता रही, देखो बैल का भी मिलता, घोड़े का नहीं मिलता, हाथी का मिलता, भेड़ का भी मिलता, ठीक है। अगे का देखो अगला क्वेश्चन है, नहीं मैं विचार कीजिए, सही उत्तर दीजिए, ठीक है। कूट का यह भी देखो इन चो किहड़ा सही ने, पहला तो दूजा सही, दूजा तो तीजा सही ने। जिवें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सड़क एवं नाली के जाल के स्थान नियोजन शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था भी वो किहड़ी धातु किहड़ी उपयोग करती होंदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सिद्धू घाटी सभ्यता की गई प्रौद्योगिक इतिहास युग से संबंधित है। अगे आप अगले क्वेश्चन अपने 80 के 80 क्वेश्चन हुण कंप्लीट हो गए। तो वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू सो मच।